Am I Good morning. audible? Good morning. Quickly tell me, first of all, what's the current status? आप लोग कहाँ पे हो? कौन से chapters पे हो? You all can quickly mention in the chat box. Great. 22. Nineteen is fine, but you guys have to increase your speed. Others joined 10 days ago. ठीक है, Karan. So I think, okay, for the November attempt, it's still fine. I'm majorly concerned about the I4 right now. I'm giving again, so I have started micro first. ठीक है, Shiva, no problem. Uh, okay, ठीक है. So the status seems good. I don't know why others are not replying in the chat box. I'm waiting for others to reply. What about others? Quickly reply. ठीक है. Ma'am, this is very first typing class. Those who have just recently joined for the November class, November batch, you guys it's still fine that आप लोग जहाँ पे भी चल रहे हो, आप लोग का टारगेट होना चाहिए for the November attempt. Every week you are completing 3 chapters, 3 to 4 chapters would be great. So we are completing 4 chapters, but that also depends. अगर कुछ chapters थोड़े बड़े हैं तो आप every day try करो
that you at least watch 2 classes. ठीक है, or maybe 1 class is still fine, no problem, but if you watch 2 classes every day, it's great. ठीक है, so that is for the November term. ठीक है Nandini, fine. Those who are re-attempting, I will suggest don't see the videos again. I don't feel there is a point. आप लोग को ना compile और read करना है. One more very important thing is when you are watching the videos, please watch it at 1x. Please don't watch it at 1.5, 2x because you might feel that आपका जल्दी जल्दी video finish हो रहा है, but nothing will be retained. तो आपको retain करना है for your exam. So if it's a 1 hour video, please take 1 hour to complete the video. Because the pace in which I'm, following in the classes, it's important for you because at that pace only you will be able to digest everything in. You will be able to understand. ठीक है? And वो सब कुछ retain हो पाएगा. If you guys are seeing at a faster speed, then you will not be able to retain anything and eventually you will face a lot of problems in your revisions and also in your revision and also at the same time आप लोगों को कुछ retain. ठीक है, so that is very very important that all of you do the videos in 1x. Ma'am, how to type answers in subjective points? हाँ, तो शिवा, this is something that हम लोग अब आज तो मेरा टाइपिंग के ऊपर फोकस रहेगा. इसके बाद से एवरी संडे जो आपका नेहा मैम के साथ क्लास हो रहा है एंड जो मेरे क्लासेस होंगे हम लोग उस पर मेजरली इसी चीज पे फोकस करेंगे दैट हाउ टू राइट योर सब्जेक्टिव आंसर्स एंड MCQs. ठीक है, सो डोंट वरी. Also, there are a few typing lectures which are already uploaded, so you all can. It's there in your जो आपका कंटेंट ब्राउजर आपको मिला है जहाँ पे सारे वीडियोस हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो. But apart from that, to be very honest, in CB2 we don't have any, specific writing as such. We have it's very plain simple typing जो आपको करना है. So in order to improve your speed, if you guys are appearing for CB2 exam with any other papers like CMCS, तो वहाँ जब आप typing practice कर रहे हो, you don't have to explicitly do it for CB2. That's my suggestion. But yes, if you are doing mock examinations and past paper solving and you are instead of writing, you can type. Okay? So that way it will improve your typing speed. So yes, appearing for mock examinations, appearing for सेल्फ इवेलुएटेड मॉक्स जो हम लोग के यहाँ से जो भी मॉक्स होंगे दैट्स फाइन, बट आपके एंड पे आप पास पेपर लेके बैठो पूरा एंड सिट फॉर इट एज अ मॉक एग्जाम, सेल्फ इवेलुएटेड मॉक एग्जाम, एंड आप उसको टाइप करो पूरा 3 hours 20 minutes 15 minutes लेके. सो आपको खुद को समझ में आएगा whether your typing speed is good or not. That's how you can just improve because CB2 में don't have a lot of mathematical notations or anything to type. ठीक है, how to write detailed answers for for subjective questions we are having a lot of classes, question solving classes on Sunday, so I hope you guys are attending that. If not, then you have to, and जो भी classes हो चुके हैं अभी तक you all can revisit because उसमें हम subjective questions and objective questions दोनों ही discuss करें, so you all can revisit those ठीक है videos. and अभी से लेके जो भी क्लासेस 1 month हमारे पास 1.5 months है, जो भी क्लासेस होंगे उसमें हम लोग यही सब चीज डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ आई जस्ट गिव यू अ क्विक आइडिया बिकॉज IFOA का हैंडबुक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. सो वी डोंट हैव द September हैंडबुक, बट दिस इज द हैंडबुक फॉर द April term, सॉरी, जो मेरे पास अभी है. एंड इसमें अगर आप देखोगे इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, बट अगेन दे डोंट अप्लाई मच फॉर योर CB2. ठीक है, मैं आप लोगों को क्विकली दिखा देती हूँ. जैसे बेसिक अगर आप लोग कहाँ सम सॉल्विंग हो सकता है, एक आप लोग का है नेशनल इनकम कैलकुलेशन विच इज अगेन वेरी सिंपल, जस्ट हैव टू टाइप द नंबर्स, प्लस माइनस करना है. यू हैव इलास्टिसिटी
तो इलास्टिसिटी के लिए आपका अगेन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वो मैं दिखा दूंगी अभी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव एनी अदर न्यूमेरिकल्स इन योर पेपर. जो भी है बहुत सिंपल है. मतलब अगर कुछ भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंपेरेटिव एडवांटेज निकालने को आ रहा है, या फिर अगर आपका यू कैन जस्ट हैव टेबल्स, तो आप टेबल बना सकते हो. आप इवन विदाउट मेकिंग अ टेबल आप कर सकते हो. सो इट्स वेरी सिंपल. एंड मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कैसे सब कुछ करना है, इंसर्ट एंड ऑल. सो इफ यू जस्ट ओपन अ सिंपल ब्लैंक word file. So one thing for IFOA students, you have it's fixed कि आपको 26 MCQs मिलते हैं. For IAI students, अभी जो पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, उसमें क्या इन्होंने CB2 को भी सब्जेक्टिव किया है क्या दोबारा से, कि CMCS को किया है खाली? कैन एनीवन जस्ट टेल मी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर. मैंने वो पढ़ा तो था नोटिस, मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ. कोई बता सकता है? जस्ट एक सेकेंड. Can anyone quickly, any IAS student is there who can? Okay, so they have done it for all. So again, we are back to square one for IAI as well. So keeping again, I don't know कि उनका marking distribution same रहेगा कि नहीं. But if it is same, then again 39 marks of MCQ for you. तो उसमें क्या करना है, कैसे आंसर करना है आपको? खाली मतलब जैसे आपने लिखा आंसर 1 and you just give the option. ठीक है, you just give the option. So if A, B, C, D जो भी है, just give the option. That's it. That's it. And now what you can do is इसके अंदर का जो लिखा हुआ है, it's entirely up to you. अगर आपको लिखना है आप लिखो, बट मतलब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज आपको मार्क्स एट दी एंड सेम ही मिल रहा है. सो जस्ट हैव टू मेंशन द ऑप्शन क्विकली. कॉपी पेस्ट किया ताकि टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है. एंड यू जस्ट चेंज. ठीक है, जो भी आपको फील होता है तो वैसे आप पूरा कर सकते हो. मान लो कि जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट है एंड यू फील दैट थर्ड क्वेश्चन इज कैन बी एनीथिंग, बी और सी. आपको बी और सी में कंफ्यूजन है. सो व्हाट सम स्टूडेंट्स डू इज दे जस्ट लीव लाइक दिस, बी एंड सी देके छोड़ देते हैं, बट इसमें आपको 0 मिलेगा. सो प्लीज डोंट डू दिस. व्हाट यू कैन डू इज, जिसमें आप थोड़ा ज्यादा आपको फील हो, बी एंड सी में से थोड़ा ज्यादा आप जिसको लगे कि वो हो सकता है, राइट दैट एंड मूव ऑन. एंड आपको पेन पेपर तो मिलता है, तो उसमें आप सिंपली लिख सकते हो 3, जस्ट ऊपर लिख दिया, ताकि आप एंड ऑफ द एग्जाम रिविजिट कर सकते हो क्वेश्चन 3. बिकॉज या फिर आप एग्जाम पेपर में भी हाईलाइट कर सकते हो क्वेश्चन, बट आई फील बेटर होता है कि आप पेन पेपर पे आप अपना लिख सकते हो 3, ताकि आपको याद है कि आपको उसको रिविजिट करना है. Because revisiting all the MCQs will not be possible if you are fast in typing and by chance you're completing the paper half an hour before, तो ही आप सारे MCQs वापस से revisit कर सकते हो. But then if you write the MCQ numbers exactly which you have to revisit, तो कर लेना. अब क्या होता है ना, if you leave B and C like this and मान लो आपको एग्जाम के एंड तक टाइम नहीं मिला and you had to just save and submit and you maybe forgot about this, तो आपको 0 मिलेगा. बट अगर आप B लिख के छोड़ते हो, you still have 25% चांस कि आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट? सो डोंट लीव ब्लैंक स्पेसेस इन एमसीक्यू. अगर आपको कंफ्यूजन है, आप कुछ भी एक बार लिख के एंड जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड मूव फॉरवर्ड. बिकॉज इससे क्या होता है ना, ऑल ऑफ दीज आर वेरी स्मार्ट थिंग्स टू डू इन एग्जाम. ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट हैबिट्स है विच यू नीड टू इनकलकेट सो दैट आपका पासिंग परसेंटेज, आपका पासिंग चांसेस गोज अप. ठीक है, तो ये हो गया. आपको ऐसे करके आप पूरा 26 MCQs कर लोगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट विल फिट इन अ पेज और मे बी मोर देन दैट. देन आफ्टर दिस जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, ऑलवेज स्टार्ट योर सब्जेक्टिव आंसर्स फ्रॉम अ फ्रेश पेज. तो जैसे हम मान लो अगर हम आंसर अभी कर रहे हैं 27, ठीक है, तो आई स्टार्ट राइटिंग माई आंसर्स यहाँ से. एंड मान लो मेरा हाफ अ पेज लगा एंड आई फिनिश ओवर हियर, नो प्रॉब्लम, इतना छोड़ दो. बिकॉज ऐसा नहीं कि आप पेपर वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप छोड़ के यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज अ गुड हैबिट. ऑलवेज स्टार्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ
always start a answer from a fresh page. It's a good habit. Why again? Because इससे एक neat लगता है. Also, ma'am, is it important to go in the order? See, since you have your word files, it's better that you go in order. Why? Because इससे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने 27 मुझे नहीं आता, आई वांट टू डू 29, आई वांट टू स्किप एंड आई वांट टू डू 29, तो मैं 29 कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम. बट यू ऑलवेज हैव द चांस टू add new pages in between, right? So you can add a new page यहाँ पे. You can add a new page यहाँ पे and just continue from there. तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि maybe you just have to यहाँ पे आप एक blank page add कर सकते हो, ठीक है? And just order wise करो. They are not saying they will not deduct the marks, but I feel for the examiner, when the examiner is checking your paper, तो उसको easy रहता है जब वो चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम भी आपका मॉक एग्जाम चेक करते हैं, तो जो स्टूडेंट लाइन वाइज अटेम्प्ट करते हैं आंसर्स, तो उसके लिए हमें इजी रहता है चेक करने में. सो व्हेन इट्स इजी फॉर अस टू चेक, वी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एट सम पॉइंट थोड़ा सब्जेक्टिव इसीलिए भी है कि एग्जामिनर एक मार्क ऊपर नीचे दे सकता है. यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट, ठीक है? यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट. सो व्हेन यू ईज द प्रोसेस फॉर एग्जामिनर, एग्जामिनर हो सकता है आपको 1 मार्क ज्यादा दे दे, ठीक है? एंड इफ एग्जामिनर फील्स अरे 29 किया इसने, फिर 34 किया, अरे तो इतना ऊपर नीचे करने से क्या है, वो थोड़ा हल्का इरिटेट हो सकता है. तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी. दिस इज व्हाट आई फील, मतलब दिस माय पर्सनल, लाइक वेरी वेरी पर्सनल व्यू पॉइंट. तो एक तो ये हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन योर आंसर्स प्लीज डोंट यूज एनी अदर कलर्स. ब्लैक कलर यूज करना है खाली. हाँ, कुछ आपको कुछ मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्ट यू वांट टू हाईलाइट, सो उसको आप बोल्ड में हाईलाइट करो, उसको आप बोल्ड में हाईलाइट करो, नो प्रॉब्लम. और इफ नॉट बोल्ड, यू कैन maybe make it in italics, or maybe you can underline a keyword. These things you can use, but don't use any other colors, not needed, because blue, रेड तो अलाउड ही नहीं है, एंड ब्लू एंड वगैरह वगैरह आपको नहीं यूज करना है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बुलेट्स में लिख रहे हैं तो बुलेट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल. तो कंट्रोल शिफ्ट एल करते ही वो बुलेट्स आ जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल. अच्छा, मैंने ना यहाँ पे, अगर आप अपने LMS पे जाओगे तो ये सॉफ्ट कॉपी नहीं, इधर इन योर CB2 पार्ट, जो अनाउंसमेंट सेक्शन है ना, दिस इज CM1, माय पेपर CB2. इसमें ना ये देखो, शॉर्टकट फॉर कीबोर्ड्स, मैं और भी 1-2 फाइल्स ऐड कर दूंगी, बट CB2 में इट्स नॉट नीडेड. शॉर्टकट फॉर कीबोर्ड जो है ना, इसको जब आप क्लिक करोगे तो इसमें सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं. अगेन, मोस्ट ऑफ इट यू माइट नॉट नीड, लाइक एडिंग अ टेबल इज स्टिल फाइन, बट आई थिंक अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी याद रखना, so you can just insert, and you can just insert table from here. Otherwise, this is the shortcut alt NT. One more shortcut is, अगर आपको font size बड़ा छोटा करना है when you are writing, तो control shift plus, मतलब करने से सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, आई डोंट फील, मतलब मुझे कहीं लगता नहीं कि आपको ये सब चीज चाहिए. सो इसीलिए मैं इतना उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ. बट यू कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू वाला जो है फॉर सुपरस्क्रिप्ट, एंड कंट्रोल शिफ्ट माइनस फॉर सबस्क्रिप्ट. एंड फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है. कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल जो है उससे, एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन सिंबल जो है उससे, ठीक है? देखो, ठीक है, ये आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया. कंट्रोल शिफ्ट माइनस माइनस, मतलब ये वाला मैं लिख देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट
and use this. ये वाला, इससे फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है. अगेन आई एम नॉट फोकसिंग अ लॉट ऑन दीज, बट ठीक है. तो ये आप कर सकते हो. शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं. एंड आई फील कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, वो इधर पे इस पे एडेड नहीं है आई गेस. ठीक है, ऐड. सो another one is control shift L. This is for adding bullets. ठीक है, अगर आपको इंसर्ट पे जाके बुलेट में जाके बुलेट ऐड नहीं करना है तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल से बुलेट्स ऐड कर सकते हो. सिंपल. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू. अगर मान लो आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेट्स से इलास्टिसिटी का, तो आप क्या करते हो? आप प्राइस इलास्टिसिटी, यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट इन वर्ड्स. सो यू कैन राइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट्स इट. लिखा इक्वल्स टू देके परसेंटेज चेंज, तो आप लिख रहे हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. तो ये आप ब्रैकेट में फिर इसको लिख सकते हो अगर आपको लिखना है. अगेन दोज हु वांट टू यूज मैथमेटिकल टाइपिंग एंड इनको आपको इक्वेशन एडिटर यूज करना है, कर सकते हो. बट आई डोंट सजेस्ट कि CV2 में इट्स नीडेड, बिकॉज इट्स वेरी मच अंडरस्टूड कि आप दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहे हो. ठीक है. सो आई डोंट फील कि इसके अलावा आपको कहीं भी और टेंशन है. कुछ भी नहीं समझ में आए जस्ट टाइप इट डाउन. कुछ भी नहीं. जैसे यहाँ पे हम अगर थ्योरी में करते तो हम वो वाला सिंबल यूज करते हैं. इफ यू रिमेम्बर P एप्सिलॉन, वी यूज एप्सिलॉन फॉर इलास्टिसिटी एंड डिमांड. ठीक है, हम वैसे लिखते हैं. सो दैट एप्सिलॉन इज नॉट नीडेड. ठीक है, आप सिंपली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखो, इट्स अंडरस्टूड. वो एप्सिलॉन अलग से लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है. Now if you have any doubts you can quickly mention in the chat box related to typing. Also one more thing, please do not mention your ARN number within the word file. Within the word file आपको कुछ भी नहीं mention करना है. आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा दैट शुड बी अकॉर्डिंग, अभी तक जो इन्होंने बताया है, अभी तक नया हैंडबुक आया नहीं है, बट अभी तक जो हम फॉलो करते थे विल बी लाइक जस्ट मेंशन द पेपर नेम CV2 or maybe first the ARN number. So जो भी आपका ARN नंबर है स्पेस दे दो या फिर इस अंडरस्कोर CB2 अंडरस्कोर September 2025. That's it. That's how you just save your file. ठीक है मैम. डॉलर साइंस लगाने हैं पाउंड्स. हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर में लगाते हैं हम शिवा. वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर. डॉलर साइंस आपको वो तो यूनिट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे ना. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. वो फाइनल आंसर में लगाना है. मैम डू वी नीड टू स्टडी एक्टेड कोर रीडिंग एंड whatever I have given you, my compiler is sufficient. उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है रश्मिका. ठीक है. Other questions? Okay, that's how you save your file. Please don't mention your ARN within the Word file. It's not at all needed. हाँ काशवी बोलो. मैम जब QD और PX लिखता है तो ऊपर मेंशन करना रहेगा क्या कि QD इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड और PX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड X? हाँ, वो तो आप यहाँ पे यू कैन स्टार्ट विद दैट ना. लेट QD be the quantity demanded for good X and price be PX be the price for. ये चीज आप थ्योरी में भी कर, मतलब ये चीज अगर प्लेन राइटिंग होता ना तो भी आप करते. ठीक है, बट इवेंचुअली आप खाली मतलब यही करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ज्यादा बार बार नहीं बताना है बिकॉज QD इज जनरली एक्सेप्टेबल कि वो क्या चीज के लिए है.
एंड px क्या चीज के लिए है, इट्स एक्सेप्टेबल। आप लिख सकते हो qd इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो अगर आपको इतना भी नहीं लिखना है। सो जस्ट qd इक्वल्स टू लिख दिया एंड px इक्वल्स टू लिख दिया। px भी यूज कर सकते हो, खाली p भी यूज कर सकते हो। और पूछो, कोई डाउट? You can insert a table if there is a comparative advantage का question, but comparative advantage के question में already table बना के दिया रहेगा। So as such आपको करना नहीं पड़े, but if you want to, you can do। जैसे यहाँ पे आपने country A, B, good X, good B लिख दिया, and यहाँ जो भी उसकी unit से लिख के, you can just start doing it here। और कोई डाउट है? Anything else you want to ask? बेसिक प्रिपरेशन वाइज और क्या करना चाहिए? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन वाइज, मैंने लास्ट क्लास जो आप लोगों को बोला है कि फोकस ऑन फर्स्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन इफ नॉट गोइंग थ्रू द रिविजन नोट्स, आप सिंपली जस्ट पिक अप द पास पेपर्स एंड पूरा 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 पास पेपर सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपका एमसीक्यूज after certain point of time you will be able to solve the MCQs better। मतलब initially अगर आपके 10 MCQs 11 MCQs सही हो रहे, so you will see 2-3 papers किया तो और अच्छा हुआ, और किया तो और अच्छा हुआ, because you will see a pattern of MCQs which are very similar। Now for the revision what you can do is, आप लोग जब MCQ solve कर रहे हो तो mark कर लो या कहीं लिख लो, ठीक है, कि मुझे जैसे हमारे एलएमएस में एमसीक्यू का आईडी है, सो यू कैन आइदर मेंशन द आईडी नंबर्स इफ यू आर सॉल्विंग इट फ्रॉम द एलएमएस, इफ यू आर सॉल्विंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, सितंबर 2020 क्वेश्चन 3 मान लो उसमें डाउट तो वो लिख लो, कोडिंग कर लो, एंड देन व्हेन यू आर रिवाइजिंग तो आप खाली वही वाले एमसीक्यूज में भी गो थ्रू कर रहे हो, वही वाले क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हो, बिकॉज रिविजन के टाइम पे इट्स नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू एवरीथिंग, एंड रिविजन इज मेजरली रीडिंग योर कंपाइलर। सो जो मैंने दिया है नोट्स है, तो वो आपको एनीवेज एवरी डे 1 hour 1.5 hours रीड करना है फ्रॉम नाउ फॉर द सितंबर टर्म। फॉर द नवंबर स्टूडेंट्स अगेन इट्स वेरी सिमिलर, जितना क्लास आप देख रहे हो एक दिन में उतना ही क्लास का कंटेंट आपको कंपाइलर से रीड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। So once you finish off the syllabus, it becomes easy because many things are interlinked. तो जब आप subjective answers करोगे, it's not only from chapter 10 but also 12, also 13, साथ में मिला के एक question आ रहा है। So अगर आपने खाली 10 किया तो आप वो question attempt नहीं कर पाओगे, तो आपको पूरा finish करना पड़ेगा to attempt that particular question। Now what we will do is हम coming weekend से चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन करेंगे। जैसे इस संडे को हम करते हैं फर्स्ट 7 चैप्टर्स का आपका एमसीक्यू डाउट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वो पूरा होगा आपका इस वीक, लाइक नेक्स्ट वीक जो है वील फोकस 1 से लेके 7 या 1 से लेके 8, आई लेट यू ऑल नो इन द ग्रुप, बट यस समवॉट लाइक दिस। चैप्टर 7 क्या है एग्जैक्टली मेरे को कोई बता सकता है? चैप्टर 7 क्या है? हाँ हाँ ओलिगोपोली, हाँ तो 7 एकदम सही है। फिर 7 तक इस वीक हम लोग रखते हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग। 7 या 8 भी कर सकते हैं इंक्लूड, नो प्रॉब्लम, प्राइसिंग है। एंड देन उसके बाद वाले क्लास में हम लोग 9 ऑनवर्ड्स करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक। तो वीक वाइज हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग एमसीक्यू, आपको जो भी डाउट्स है, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व किया उसमें आपको कोई डाउट है, एंड इवन द फैकल्टी, मी एंड यू नो द अदर फैकल्टी, हम लोग उस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को एक रिविजन स्ट्रैटेजी मिल गई कि आप लोग को फर्स्ट 8 चैप्टर्स रीड करके आना है,
ठीक है, क्लास में. सो इट विल नॉट टेक मच टाइम, आपको खाली क्विकली रीड करना है. गॉट इट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे. आई होप इसके अलावा आपको टाइपिंग में और कुछ नीडेड नहीं है. अगर आपको नेशनल इनकम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सिंपली प्लस कर करके बोलोगे. मान लो अगर आप बोल रहे हो कि कंज्यूमर, जैसे हम क्या लिखते हैं, हम या तो हम जीडीपी इक्वल्स जीडीपी या टेम्पी या जो भी है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस, आप जो करते हो ना, तो इसके अब आप बोलोगे मैम सी क्या है बताना है. यस ऑब्वियसली, वो तो आप नॉर्मली लिख के भी करोगे तो आपको बताना है कि सी इज कंज्यूमर, सी इज द ओवरऑल डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक डिमांड. जी हो गया आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन. आई हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. तो वो आपको लिखना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम जो आईए के लिए लॉक होगा वो सब्जेक्टिव, हाँ मॉक हम ऑलरेडी, जो ऑब्जेक्टिव मॉक्स है वो तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं. ठीक है, तो वो तो आपको पोर्टल पे भी मिल जाएगा. ऑब्जेक्टिव मॉक्स तो बहुत सारे आपको पोर्टल पे भी मिल जाएंगे हमारे. एंड सब्जेक्टिव मॉक हम लेंगे लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है हमारा. फर्स्ट मॉक सबमिट करने का डेट इज 10th अगस्त एंड सेकंड इज आई थिंक 20th अगस्त. दैट इज फॉर द आईएफओए स्टूडेंट्स. फॉर आईए स्टूडेंट्स वील ओपन द मॉक समवेयर इन अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर, अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक वैसा. तो उस समय आईआई का हम सब्जेक्टिव मॉक लेंगे. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाँ ठीक है. ओके, सो थैंक यू गाइज, लेट्स डू इट टिल हियर. देयर इज नथिंग मोर. आप लोग को शॉर्टकट में मैंने बता दिया क्या ज्यादा से ज्यादा आपको जानना है. That's it. You just have to save your file and keep saving your file after each question. Save your file, close your work, and upload. Please use the desktop version of the Word file. Those who are having online version, web versions, that's not what is supported in exam. अगेन आईएफओ स्टूडेंट्स जिनका ऑफलाइन है, जो जाके सेंटर बेस्ड है, तो उनको तो एनीवेज वर्ड फाइल वहीं पे मिलेगा. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लैपटॉप से हम जब उनके कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो हमारा टाइपिंग स्पीड स्लो होगा. नहीं, इफ योर टाइपिंग स्पीड इज गुड नाउ देन इट विल बी गुड दैट टाइम एज वेल. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देयर कीबोर्ड्स आर ऑल्सो वेरी गुड. तो वैसा कुछ डिफिकल्टी आपको फील नहीं होगा. लास्ट टर्म भी स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा डिफिकल्टी फील हुआ नहीं था. यू नीड टू एक्सपीरियंस द ऑफलाइन एग्जाम कैसा होता है, वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम एंड इट हैज टू बी ऑफलाइन. अभी तक ऑनलाइन हो रहा था, वो गलत था. अब जब इन्होंने ऑफलाइन किया है, दैट्स अ वेरी गुड मूव दैट दे हैव मेड. तो ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स आर सपोज टू बी टेकन ऑफलाइन, राइट? तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा. सो यू गाइस आर वेरी, एंड द सेंटर्स आर रियली गुड. आईएफओए के सेंटर्स आर वेरी वेरी गुड. सो यू डोंट हैव टू वरी. यू जस्ट हैव टू कैरी योर टेबल बुक्स. तो अगर आपको आईएफओए से टेबल बुक नहीं मिला, बिकॉज अभी वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मे बी जेरोक्स वर्जन अलाउड हो सकता है. तो आप वो जेरोक्स वर्जन लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड और द अदर डिटेल्स कि हमें क्या क्या लेके जाना है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एंड क्या. सो वंस द हैंडबुक इज रिलीज्ड वील मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, सो डोंट वरी. But yes, apart from that, there is nothing more that you have to do for CB2. You just have to study, that's it. Typing practice उतना अगर आप दूसरे पेपर के साथ कर रहे हो, गुड. अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसके मॉक एग्जाम्स दोगे तो आपका ऐसे ही टाइपिंग फास्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. Thank you, ma'am. थैंक यू.